ابھی تشریف لائے تو میں نے یہی کہا کہ اپنی یہ ہر مصروفیت کے باوجود آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو ہم بے حد مشکور ہیں اور آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے. تو میں مزید کے وقت ضائع کیے بغیر ریکویسٹ کروں گا جناب راجہ رضوان واسی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. سر بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I feel honored that I am standing here for lecture. So today's topic is the criminal trial and procedure of trial in criminal courts. It is primarily provided in Code of Criminal Procedure, CRPC. Definitely other laws are also involved, but so far as procedure is concerned, it is provided in Code of Criminal Procedure. So first of all, see what is crime. Any one of you may tell me about the definition of crime. Aap bataएं. Anything done against the land laws, anything done against the personal rights of some entity, Some other person. Any wrongful act done by a person to harm someone selectively or mentally or Someone else. A crime is basically something that's done that violates the right of a particular, not just a particular person, but the society at large. They feel offended by this, and they say we cannot let this be. And for this wrong, some punishment is provided. And some punishment is provided. And punishment is provided because there are civil wrongs as well. Yeah. So that is why crime is always considered against the state. So normally how criminal action is initiated, how this procedure is initiated. There are two ways. One by way of registration of FIR in case of commission of cognizable offence, and second is filing of private complaint. So whenever some offence is committed, میں آپ کو جو جنرل چیز ہے وہ میں بتا رہا ہوں جو کہ پریویلنٹ ہے بیکاز یو آر بگنرس, تو آپ کے لیے جو ایزی ہے ٹو انڈرسٹینڈ. whenever some crime is committed, so one person moves an application or informs the police. Even moving of application is not necessary. So information conveyed to station house officer. If said information depicts commission of cognizable offence, then it is reduced into writing in a way by way of FIR, which is called First Information Report. There is a register provided in police rules. So entry in said register is called First Information Report. So whenever First Information Report is registered, investigation commences. Investigating officer is deputed to investigate the matter, who visits the spot, record statements of witnesses, and within or collect any evidence pertaining to said offence, either in favor of accused or against the accused, whatever comes on surface. That is called crux of investigation, and it is submitted before the court within 14 or 17 days under section 173 of CRPC. So that is called report under section 173 of Code of Criminal Procedure. And whenever accused is found guilty, then it is called challan. Then his name is placed in column number 3 of report under section 173. And if he is found innocent, then his name is placed in column number 2 in blue or black ink. So for him, this is not a challan. For innocent person who is not challaned by the police, it is report under section 173 of CRPC. So once this report is submitted before the court of magistrate,
thereafter magistrate has to see whether case is triable by his court or it is triable by the Court of Sessions by virtue of section 190 CRPC 190, 191, 192, 193 ये सारे sections हैं. So if case is triable by the Court of Sessions, then matter is sent up to the Court of Sessions. If it is triable by the same court, then same court takes cognizance and proceed in the matter. Mechanism for trial or procedure of the trial before the Court of Magistrate is provided in section 241A and onward. Procedure of trial before the Court of Sessions is provided under section 265C of CRPC. Sorry, 265 of CRPC, जिसमें C में copies, delivery of copies हैं, आगे charge है, फिर statement of witnesses है. So whenever some court takes cognizance of offence, first of all, procedure provided in law, which is meant for informing the accused that in fact what evidence is existing against him, those documents, those statements are to be provided to the accused person. Statements, first inspection note, either statement may be under section 161 or 164 of CRPC, और अभी judgments जाती हैं कि even other incriminating material which is available on the record, for example कोई USB है, कोई recordings हैं, that incriminating material is to be provided to the accused. क्यों provide करना है? Because next step is framing of charge, और उस framing of charge में accused से deeply record की जाती है कि whether he wants to say about said charge. अगर उसको ये पता नहीं होगा कि in fact what material is existing against him, he will not be able to defend him. So after providing this material, then next step is framing of charge. Charge is framed against the accused, और वो charge क्या होता है? Anyone? आप बताएं? हाँ बेटा. What is charge? नहीं इसको नहीं. जो एलिगेशन है उसको फ्रेम करना, जो अक्यूज पे लगाएंगे, उसको फिक्स करना, और फिर नेक्स्ट जो स्टेज होगा उसको ट्रायल में आगे. Anyone? The offense is read to the accused, its punishment is also told to the accused, and his role in that FIR and that offense is also mentioned in the charge, and he is asked that whether he found himself guilty or not. हाँ वो तो उसका. Yeah. So basically, by charge we mean that the court will say, by virtue of all this investigation and such material gathered against you, we are alleging that this provision applies against you. These are the things you have been accused of committing. So, in nutshell, gist of allegation is put to the accused along with its penal provision कि तुमने ये जुर्म commit किया है. So, gist of allegation along with its penal provision, that is called charge, जिसमें time of occurrence होता है, manner of offense, in just बिल्कुल nutshell में वो बताया जाता है to the accused, और उसके बाद plea of accused is also recorded in this regard. तो चार्ज फ्रेमिंग का क्या मतलब है? क्यों चार्ज फ्रेम किया जाता है? Anyone from ladies? आप बताइए. Yeah. Sir, right of opportunity to be heard, fair trial, and all these concepts of natural principles of justice. ताकि एक्यूज अपने आप को डिफेंड कर सके. लेकिन जितना भी प्रोसीजर है, इसका एक मकसद है कि 100 गुनाहगार भले बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. That is why accused is called or termed as a favorite child of law.
as a blue-eyed child of law. ये benefit of doubt is always extended in favor of accused, not in favor of prosecution. शक का शायबा जहाँ पे होगा वहाँ पे accused is liable to be acquitted. फिर accused को सजा नहीं दी जा सकती. और उसके पीछे मैक्सिम जो है वो यही है कि बेशक 1000 जो गुनाहगार हैं वो बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. So when charge is framed, thereafter prosecution is asked to prove its case through evidence. Opportunity is provided to the prosecution to lead their evidence. तो prosecution case में जितने भी witnesses होते हैं, calendar of witnesses, those are summoned by the court, or even any other person whose name is not provided in the list of witnesses, that person can also be summoned by way of session trial की मैं बात कर रहा हूँ 265F और section 540 of CRPC. कोर्ट जिस भी शख्स के मुतालिक ये कंसिडर करे that he is acquainted with the facts of the case and without his evidence substantial justice cannot be done. His evidence is essential to the just decision of the case. Court is bound to summon said person as a witness. So statement of prosecution witnesses is recorded. When prosecution evidence is complete, then after closure of prosecution evidence, statement of accused is recorded under section 342 of CRPC. 342 का क्या ऑब्जेक्ट है? Anyone of you? Yeah. So when after going through the evidence of the prosecution, it seems to the judge that there are some allegations required to question from that specific accused, and there are some questions in the mind of the judge. He put that question to that accused that whether he has committed that offense or his allegation, what is his view, and if that accused prefers to not answer that question or to answer them in a wrongful manner, it's not against him, but the court may confer it from it that these are going to be in against Anyone? Sir, the question, will you repeat the question, sir? What is the purpose of section 342? ये मोबाइल फोन तो ऑफ कर दीजिए प्लीज. To record the statements in the defense witnesses. ये बेहतर है आपकी बात. Entire incriminating material is put to the accused in order to ascertain the point of view of said accused. जितना भी incriminating material available in form of prosecution evidence, then accused is given opportunity to respond towards said incriminating material. लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इट इज इनकरेक्ट. हमें देखिए ये वाहिद मौका है जब आप डिटेल में किसी बात का जवाब दे सकते हैं. इन डेप्थ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्यूज बता सकते हैं. तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इन डेप्थ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट को बताएं किसी भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल और एलिगेशन के वो मटेरियल के अगेंस्ट, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए. हाँ, सर्टेनली किसी बात अक्सर सवालों का जवाब आप इनकरेक्ट नहीं देते हैं कि एलिगेशन इज इनकरेक्ट, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस, हाँ स्वाय एक क्वेश्चन जिसका डेप्थ जवाब दिया जाता है वो है व्हाई दिस केस अगेंस्ट एंड व्हाई PWs डिपोज्ड अगेंस्ट. लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि जब एक एक्यूज को ये अपॉर्चुनिटी अफोर्ड हुई बाय द कोर्ट टू गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, टू रिकॉर्ड हिज कंटेंशन qua incriminating material available on the record, तो उसको इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए और इन डेप्थ कोर्ट को बताना चाहिए कि व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू
and what is the veracity of this evidence which has been adduced by the prosecution against him. तो यूजुअली हम इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट इन हेस्ट, कि जी कौन इन डेप्थ जवाब दे, चलें सिंपल जवाब दे दें, इट इज इनकरेक्ट. तो ये इंटायर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इज पुट टू द एक्यूज. और जब 342 में अगर एक्यूज को कोई मटेरियल पुट ना किया जाए, सेट मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम. फिर कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर मैंडेटरी इन सेक्शन 342. वो ये हैं कि इफ एक्यूज वांट्स टू एड्यूस डिफेंस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन. नंबर 2, वेदर एक्यूज वांट्स टू अपीयर एज ए विटनेस इन हिज ओन डिफेंस. तो वो जो स्टेटमेंट होती है, एक्यूज अपने डिफेंस में ओथ पे खुद भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC. इफ एक्यूज ऑप्ट्स टू एड्यूस डिफेंस विटनेसेस, तो 342 के बाद एक्यूज के गवाहान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, या एक्यूज इफ ही ऑप्ट्स टू अपीयर इन हिज ओन डिफेंस, तो देन स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज ऑन ओथ इज टू बी रिकॉर्डेड. और उन जो विटनेसेस या डिफेंस विटनेसेस जो हैं, they are cross-examined, and then it is a time of final arguments. If accused produces or adduces defense witnesses or appear in his own defense, then it is the defense side which opens the case. And if defense evidence is not produced by the accused, then it is the prosecution which opens the case, और जो दूसरी साइड है वो रिबट करती है, and then final judgment is announced. सर, अगर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल की आपने बात की, मसलन एक मर्डर हुआ है, तो जिस पिस्तौल से और जो होल मिला है उसके नंबर से ये पता चला है कि इस पिस्तौल के अगेंस्ट ये बुलेट दी गई और वो बंदा मर गया है, और जो मर्डरर है, कातिल है, वो साबित करता है कि जिन तारीखों में ये मर्डर हुआ मैं तो उम्रे पे था, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? देखिए, वो उस सूरत में एक्यूज अपने डिफेंस में बताएगा कि आई वॉज नॉट इन द कंट्री, और उसमें इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन वो अपना पासपोर्ट या जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, टिकट वगैरह, या इवन एयरपोर्ट का रिकॉर्ड जो है इमिग्रेशन का, वो भी वो मंगवा सकता है और कोर्ट में वो एग्जिबिट करवाएगा इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन. और इवन विटनेसेस को भी वो सजेस्ट करेगा कि ये वो खुद मौजूद नहीं था एट द टाइम ऑफ दिस अकरेंस. तो प्रोसिक्यूशन अपना केस पुट करेगी, एक्यूज अपने डिफेंस देगा, और कोर्ट ने इन द लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंस जजमेंट पास करनी. तो डेफिनेटली प्ली ऑफ एलिबाई है. तो ये जो है, इसका बर्डन स्पेसिफिक जो प्लीज हैं, जो एक्यूज प्ली लेता है, वो एक्यूज ने फिर प्रूव करनी है. लेकिन अगर एक्यूज प्रूव नहीं करता, तो इट डजंट मीन दैट प्रोसिक्यूशन इज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम प्रूविंग द केस अगेंस्ट द एक्यूज. इट इज स्टिल बाउंडेड ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस अगेंस्ट द एक्यूज बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट. और जजमेंट्स गो टू दिस एक्सटेंट कि इफ defense version is weak, even then it doesn't mean that accused is found guilty. Still it is the job of prosecution. Judgments यहाँ तक हैं कि अगर accused confession तो 164 different बात है, अगर guilty plead कर ले at the time of framing of charge in capital offences or other, तो तब भी कोर्ट पे वो obligatory नहीं है कि कोर्ट उस plea के ऊपर उसको सजा दे. Still court word may has been used. Even then अगर कोर्ट देखे कि वो गिल्टी कर रहा है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है या कुछ और मटेरियल है, तो उसको जो है इवन कैपिटल चार्ज में तो गिल्टी करने पे सजा नहीं दी जाती. अगर दी जाती है तो सुपीरियर कोर्ट्स उसको रिमांड बैक कर देते हैं कि चाहे इसने गिल्टी प्लीड कर दी है, कैपिटल सेंटेंस है, प्रोसिक्यूशन को जो है अपॉर्चुनिटी वो देनी चाहिए टू प्रूव इट्स केस. और उसमें अगर कोई झोल आता है एविडेंस में, स्टिल एक्यूज कैन बी एक्विटेड. इन मेनी केसेस इट हैपेंड. ये दिस वाज द वन ऑफ द कॉमन प्रोसीजर इन आवर कोर्ट्स टू प्रूव द केस ऑफ प्रोसीजर ऑफ ट्रायल.
अब दूसरा जो प्राइवेट कंप्लेंट का मैंने आपसे जिक्र किया, उसकी भी दो सूरतें हैं. देयर आर सर्टन penal laws which provide remedy of private complaint, only mechanism to file a private complaint, like illegal dispossession act. उसमें FIR नहीं है. There is only way, that is the procedure of filing of private complaint before the court of competent jurisdiction. In private complaint, it is the complainant who takes charge of entire case. और कंप्लेनेंट जो है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रूव द केस अगेंस्ट द एक्यूज. वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. वैसे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब प्राइवेट कंप्लेंट रेगुलर हियरिंग के लिए एडमिट हो जाती है तो उसका भी जो स्टेटस है वो स्टेट केस का हो जाता है, प्राइवेट कंप्लेंट. लेकिन स्टिल इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंप्लेनेंट साइड, कंप्लेनेंट. तो प्राइवेट कंप्लेंट इन अदर केसेस, when private complaint is preferred, whenever complainant is dissatisfied from police investigation in any way, कि accused को innocent कर दिया while giving him undue benefit, or obliging concessions have been extended in favor of accused, or version of complainant party or aggrieved party has not been properly recorded. In those eventualities, accused is a complainant party may file a private complaint. And like offences regarding illegal dispossession, etc., there is only way to initiate criminal case is to file a private complaint. तो इस्तगासा भी उसको कहते हैं. तो प्राइवेट कंप्लेंट में पहले कंप्लेनेंट और उसके प्राइवेट विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं. उसके बाद जो ऑफिशियल, जो सरकारी गवाहान होते हैं, their statements are recorded as a CW, जिसमें पहले prosecution क्रॉस एग्जामिन करती है and thereafter defense side उनको क्रॉस एग्जामिन करती है. फिर जब क्लोज हो जाती हैं, तमाम एविडेंस जो है ख़त्म हो जाती है, और फिर 342 एंड सेम प्रोसीजर जो है डिफेंस विटनेस इफ एनी, एंड देन फाइनल जजमेंट इज अनाउंस्ड. आपके माइंड में कोई भी, वैसे तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, एक जो सब्जेक्ट है वो इतना लेंथी है उसके कि एक दिन में भी उसके मुताबिक आप प्रॉपर नहीं लेक्चर उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको कवर नहीं कर सकते. इवन अगर हम सेक्शन 150 उठा रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी बहुत सारी सूरतें हैं. हम 161 को देखें, उसकी बहुत सारी सूरतें हैं. 173 को देखें, उसके बहुत सारे केसेस. तो ये मैंने आपको बहुत प्रिसाइज जो है वो प्रोसीजर बताया है, ऑफ प्रोसीजर ऑफ ट्रायल मैंने बताया है. अदरवाइज वैसे तो 3 फेजेस होते हैं किसी भी क्रिमिनल. उसके पहला इन्वेस्टिगेशन फेज है जो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन फेज, देन इंक्वायरी फेज एंड देन ट्रायल. In certain laws, like if some government servant is involved in commission of offence, तो उसमें पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद वो इंक्वायरी होती है बाय द FI अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2002 के. उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है. Whenever inquiry is culminated अगेंस्ट द एक्यूज, तो फिर वो FIR में कन्वर्ट होती है. फिर उसी तरह इन्वेस्टिगेशन, और जो दोबारा इंक्वायरी फेज आता है लॉ में, वो कोर्ट का इंक्वायरी फेज है जिसमें कोर्ट सर्टेन एस्पेक्ट्स देखती है. और फिर वो ट्रायल फेज जो कि मैं ऑलरेडी मैंने आपको ज़्यादा जो है वो ट्रायल के मतलब बताया है बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन. कोई भी क्वेश्चन अगर है तो यू आर एट लिबर्टी. सर, ये 161 CRPC की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऑर्डिनरी कोर्ट का कुछ सेम होता है? जी बिल्कुल सेम होता है. उसमें एक्यूज के सिग्नेचर्स नहीं होते, तो सॉरी विटनेसेस या एक्यूज जो भी हैं वो उनके सिग्नेचर्स नहीं होते और प्रोसीजर सेम होते हैं. दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी CRPC को एप्लीकेबल किया जाता है और ऑर्डिनरी कोर्ट में भी CRPC को एप्लीकेबल किया जाता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
बनाने के क्या मकसद है? देखिए ये स्पेशल लॉज होते हैं जिसमें बास स्पेशल प्रोसीजर्स भी प्रोवाइडेड होते हैं, लेकिन जो जनरल प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और लॉ में ये प्रोवाइडेड होता है कि अगर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो जो स्पेशल लॉ है इट विल प्रीवेल। तो अब इसमें एटीसी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें अगर 780 है, 88 है कवर्ड विद मर्डर, 7302 है, तो आप ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है। इसमें जो आपकी कोर्ट्स हैं वो सेपरेट कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट हुई, फिर इसमें जो है वो रिमांड का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। तो इसलिए जहाँ पे नॉर्मल लॉ, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें जो है जो स्पेशल लॉ है इट ऑलवेज प्रिवेल्स। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें सिमिलर हों, लेकिन जब भी देखें किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब कोई भी क्राइम बढ़ता है और आप ये देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी लॉ है वो सिचुएशन को कैटर नहीं कर पा रहा, तो फिर आप उसके लिए स्पेशल लॉज बनाते हैं इन ऑर्डर टू कैटर दैट सिचुएशन। सर ये जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला बना हुआ है तो वो भी स्पेशल लॉ में आएगा कि वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होता है, कंप्लेंट जाती है और उसको सजा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहती। ये पता नहीं आप कहाँ से आप ये बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा केस हो जिसमें एविडेंस ना हो और सजा दे दी जाए, ऐसा कोई भी लॉ मैंने नहीं देखा। और स्पेशल लॉ वो तमाम लॉज जो स्पेशली अलहदा से प्रोमलगेट हुए हैं, दोज आर कॉल्ड स्पेशल लॉज। मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट एंटी रेप एक्ट ऑल्सो, तो उस ऐसी कोई बात नहीं है कि देयर इज नो एविडेंस और सजा दे दी जाती है, इट नेवर हैपेंस। I wanted to ask, what is the specific difference or exactly the difference between an inquiry and an investigation? तो लेकिन पहले आपका एक एक्सेप्शन है जहाँ पे समरी ट्रायल्स है, वो एक अलग से सब्जेक्ट है। समरी ट्रायल में आप शो कॉज देते हैं एक्यूज को, और अगर उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता तो कोर्ट जो है विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस इसी बेसिस पे उसको सजा दी जाती है, लेकिन वो किसी बड़ी सजाएं नहीं है उसमें प्रोवाइडेड। अब आपके सवाल का जवाब देखें, जो सॉरी एंटी टेररिज्म वाली जो इसमें समरी तो होता ही है। नहीं, समरी ट्रायल नहीं होता एंटी टेररिज्म एक्ट में, वो अलहदा से कुछ सेक्शंस हैं बहुत थोड़े से जिसमें बहुत कम जो है वो पनिशमेंट होती है, वो समरी ट्रायल्स। कैपिटल नहीं होती उसमें? नहीं कैपिटल को भी। तो देखिए इंक्वायरी जैसे मैंने आपको बताया, एक वो है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है लाइक FIA, उसका पर्पस भी ये होता है टू असरटेन द ट्रूथ, और ड्यूरिंग इंक्वायरी इफ इट इज फाउंड दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और एक्यूजेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड दोज आर ट्रूथफुल, तो देन इट इज कल्मिनेटेड इनटू FIR एंड इन्वेस्टिगेशन, वो फिर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होता है। So basically inquiry is done by agency and investigation by First of all, when report under section 173 of CRPC is submitted before the court of law, तो वहाँ पे पहला प्रोसेस होता है कि कौन से एक्यूज को समन करना है। Even court can summon any accused whose name is not appearing in any of the column, because court always takes cognizance of offence and not co-offender. So whoever has committed an offence, he can be summoned by the court. तो वो जो कोर्ट का इंक्वायरी प्रोसीजर है या इंक्वायरी स्टेज है, उसमें ये 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, किसको समन करना, या ये देखना कि वेदर सेड ऑफेंस इज ट्रायबल बाय सेम कोर्ट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय एनी अदर कोर्ट। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि किस किस एक्यूज को समन करना है, और तीसरे नंबर पे चार्ज क्या फ्रेम करना है। जो प्रॉपर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस वाली बात है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होती है। वैसे तो इसमें कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होता है। कॉग्निजेंस तो उसके मतलब टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस इज नॉट डिफाइंड इन CRPC, उसका वेन एवर कोर्ट अप्लाइज इट्स जुडिशियल माइंड, तो वो दैट अमाउंट्स टू टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस। तो वो जो ट्रायल फेज है प्रॉपर, वो फ्रॉम दी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज स्टार्ट होता है।
تو وہ جو کورٹ والا انکوائری پروسیجر ہے, انویسٹیگیشن والا تو بتا دیا میں نے آپ کو, جو کورٹ کا انکوائری پروسیجر ہے اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی کہ کس کو سمن کرنا, یہ کیس کس کے ٹرائبل ہے, اور کون سا میٹیریل ایکیوز کو پرووائڈ کرنا, اور چوتھے نمبر پہ چارج کیا فریم ہونا ہے, اور فرام دی فریمنگ آف چارج ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ کورٹ دیکھتی ہے. اس میں نور الہی's کیس ہے, نور الہی's کیس ہے, PLD 1966 ہے یا 67 ہے, 66 ہے شاید جی, پیج 708 ہے. اب اس میں جو ججمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اٹ از ٹو بی ٹیکن فرسٹ, اور جو پروسیڈنگز ہیں اسٹیٹ کیس میں دوز آر ٹو بی اسٹیٹ. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو ججمنٹ ہے اس میں سپریم کورٹ نے CPC سے کچھ رولز بورو کیے فار دی فرسٹ ٹائم, ایٹ لیسٹ جو میں نے پڑھا. وہ تھا کہ اگر سیٹ آف accused or set of witnesses in private complaint and state case are same, then both cases are to be consolidated. If set of accused and set of witnesses are not same, then both cases cannot be consolidated. اور کیونکہ state private complaint میں تو private witnesses ہوتے ہیں, اور جو state case کے witnesses ہیں وہ 540 میں ایز اے CW سمن ہوتا ہے. تو اب دونوں چیزیں میں آپ کو, اگر سیٹ آف ایکیوز ڈفرینٹ ہے تو دین اسٹیٹ کیس ول بی اسٹیٹ, cognizance will be taken in a private complaint, statement of private witnesses will be recorded as a PW, statement of other official witnesses will be recorded as a CW, and if all accused in a private complaint are convicted, then accused mentioned in state case are liable to be acquitted. But if accused mentioned in private complaint are acquitted, then courts initiate the proceedings against the accused mentioned in state case. اور جب کنسولیڈیٹ اگر ہو جائے دونوں کیسز تو تب بھی جو پروسیجر آف پرائیویٹ کمپلینٹ ہے دیٹ از ٹو بی اڈاپٹیڈ. پرائیویٹ وٹنسز جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے ایز اے PW, ان کی ایویڈنس کلوز کر کے دین جو آفیشیل وٹنسز ہیں دیئر اسٹیٹمنٹس آر ریکارڈیڈ ایز اے CW, اینڈ دین ریسٹ آف دی پروسیجر آئی ہیو آلریڈی مینشن. از اٹ کلیئر؟ سر یہ جو شروع میں کیسز ہوتے ہیں کڈنیپنگ ایک جو PPC کے اندر بتائی گئی اس وقت کڈنیپنگ فار رینسم, تو ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ سمپل جو کڈنیپنگ ہوتا ہے پھر کڈنیپنگ فار رینسم. دیکھیں جو سمپل کڈنیپنگ ہے اس کی کوئی پنشمنٹ پرووائڈیڈ نہیں ہے ان PPC unless and until it is coupled with some other act. For example, kidnapping for secret confinement 365 ہے, kidnapping from lawful guardianship. پھر جیسے آپ نے کہا kidnapping for ransom جس کی ڈیتھ سینٹینس ہے. اب جو kidnapping for ransom ہے اس کے اوپر ججمنٹ یہ ہے کہ if it is not covered by section 6 or 7 of Anti-Terrorism Act, even then اس کا جو ٹرائل ہے وہ ATC میں چلے گا, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلے گا. تو جو کڈنیپنگ فار رینسم ہے اس کا ٹرائل اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہوتا ہے, چاہے سیکشن 6 اور 7 اس میں اٹریکٹ نہ ہوتے ہیں. سر یہ جو کڈنیپنگ مسنگ پرسن آ جاتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں تو آپ ہیبیس کارپس میں جاتے ہیں ہائی کورٹ, سیشنز کورٹ میں یا سپیریئر کورٹس کے پاس,
कोर्ट के कोई भी आदमी जो है ही इज मिसिंग, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अभी हमारे केस में जो है वो समवन वाज मिसिंग फ्रॉम बैरिया टाउन और दिस एरिया, तो हाई कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट नोटिस लिया, इवेंचुअली दैट पर्सन वाज फाउंड। Sir, why do the prosecutor always have to appeal before the High Court? Like, I want to understand the rationality behind it. क्योंकि सेशन कोर्ट है एक competent court, so why do they expect that? जी, जो अपील अगेंस्ट एक्विटल है, देखें, देयर इज ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, and whenever something is required by the law to be done in a particular manner, it is to be done in that manner. अब अपील अगेंस्ट एक्विटल का जो फॉरम लॉ ने दिया है वो है हाई कोर्ट। पहले तो जो मैजिस्ट्रेट से कन्विक्शन होती थी, अगर वो 4 साल से ज्यादा होती थी तो उसकी भी अपील जो है वो हाई कोर्ट में होती थी। 4 साल से कम कन्विक्शन हो तो सेशन में होती थी। अब ये है कि एनी कन्विक्शन सेंटेंस पास बाय द मैजिस्ट्रेट, उसकी अपील जो है दैट इज फाइल्ड बिफोर द सेशन। लेकिन जो अपील अगेंस्ट एक्विटल है उसका जो फॉरम है दैट इज ओनली फॉरम अवेलेबल फॉर दैट इज हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 417 ऑफ CRPC। Sir, I have a question regarding practice. There are a lot of judgments, and you would obviously know, in which they say when bail is made out, it is the rule, not the exception. However, in practice, when we go to the magistrates, even though a person would give like a lot of judgments and the case is made out to be bail, they still do not give bail. Why is that, sir? There are many cases where magistrates grant bail. देखिए ना, these are discretionary powers. अब उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को कोर्ट ने अपने माइंड के मुताबिक एक्सरसाइज करना है। समटाइम्स दे सी दैट हाउ मच लॉस हैज बीन ओकेजन टू द विक्टिम, टू द प्राइवेट पार्टी, टू द कंप्लेनेंट पार्टी, तो वो ये तमाम चीज़ें देखते हैं और ज़्यादा फसाद ना हो उसको प्रिवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ज़्यादा चोट आई किसी के मारने से और वो अगले दिन सेशन में बेल तो मजिस्ट्रेट के पास बेल लगा देता है, मजिस्ट्रेट से अपना देखना है कि कितना हार्म कॉज हुआ, इसकी एविडेंस कितनी है, और वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं कि अगर वो जल्दी बेल दे दी तो मे बी कोई दोबारा होना। समटाइम्स लॉ ये नहीं कहता, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, तो देयर आर मेनी कंसिडरेशंस In the magistrate's mind. Yeah, in the mind of the court. Potential danger, basically. Yeah. पुलिस भी बेल दे सकती है जी बिल्कुल बेल दे सकती है, लेकिन नॉर्मली वो देते नहीं है। वो इन बेलेबल ऑफेंसेस वो जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कैन एक्सेप्ट शूटिंग बॉन्ड्स। इवन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अंडर सेक्शन 169 ऑफ CRPC दे कैन और डिस्चार्ज द एक्यूज। वो कोर्ट का जो डिस्चार्ज ऑर्डर है वो सेक्शन 63 के तहत है, लेकिन जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसी वक्त बॉन्ड ले सकते हैं फ्रॉम द एक्यूज इवन इन ए मर्डर केस। पुलिस के पास जो बेल की पावर्स हैं वो कोर्ट से ज्यादा है इन एवरी केस दे कैन, लेकिन जहां पे एविडेंस डेफिशिएंट हो। या two questions. First one is throw some light on the procedure of Kalandra, initiated by special executive magistrates at their trial, summary trial, which is initiated in section 262 to 265 of CRPC. And the second one is bifurcate or differentiate between when we go to appeal under 435, 439 or 439A, and when we go to appeal, and what is the main distinction between these two terms? जो कलंदरा है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है। जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की आप बात कर रहे हैं तो वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं 107, 151 वगैरह के, या सेक्शन 145 CRPC हो गया, कोई किसी के रास्ते का मसला है या कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो अगर अडॉप्ट करने हैं पुलिस ने तो उसमें भी वो फिर कलंदरा फाइल करते हैं बिफोर द स्पेशल मजिस्ट्रेट, और उसके आगे जो है वो एज पर लॉ 145 में तो इटसेल्फ कंप्लीट प्रोसीजर मेंशन है कि हाउ मजिस्ट्रेट विल प्रोसीड इन दोज वेरी मैटर्स। तो जहां तक रिविजन का ताल्लुक है, रिविजन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल जुडिशियल ऑर्डर्स wherein appeal is not provided. In CRPC
all judicial orders are amenable before the court of session or before the high court. अगर सेशंस में आपने रिविजन फाइल करनी है तो वो 435, 439A में होगी, और अगर हाई कोर्ट फाइल करनी है तो 435 और 439 में आप रिविजन में जाते हैं. अगर सेशंस का ऑर्डर है तो वो रिविजन हाई कोर्ट फाइल होगी. अगर मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट का ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर है, तो वो सेशन में रिविजन फाइल. सर एक क्वेश्चन है, अगर कलंदरे में कोई बंदा कन्विक्ट हो गया तो समरी प्रोसीजर होता है, डीसी मौके पे उसको सजा देते हैं या मेड्स एंड मायर्स पे या प्राइस हाइक पे या किस चीज या आपको 3 का या 6 दिन का अड़ियाला पीएन चाहिए और इसका 83 प्रोसीजर ले देते हैं. देखिए उसमें भी ना लॉ में सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, बाज में अपील्स नहीं फाइल आप कर सकते, लेकिन ऑन एक्सेप्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ. But my question is कि whether that Kalandra validates its character afterwards, वैलिडेट इट्स. character or record. देखिए उसमें भी लॉ में प्रोवाइडेड है शायद कि कुछ आपकी बात दुरुस्त है कि अगर फाइन की जो रेशो है वो एक पर्टिकुलर उससे एक्सीड नहीं करती तो वो कन्विक्ट कंसिडर नहीं होती. इसी तरह अगर जो सेंटेंस है वो भी एक पर्टिकुलर जो है वो टाइम ड्यूरेशन है जो भी मेरे जहन में नहीं है, अगर वो एक्सीड नहीं करती जैसे आप कह रहे हैं तो वो कन्विक्ट के डेफिनेशन में नहीं आती. सर ये सेट ऑफ विटनेसेस क्या सेट ऑफ विटनेसेस हुए उनको क्लास एट अ टाइम के या अदायगा. देखिए इसमें सीआरपीसी में कुछ भी ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन ये प्रोप्राइटरी डिमांड्स कि अगर कोई एक से ज्यादा विटनेसेस हों जिनकी एक जैसी एविडेंस हो और जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन से डिफेंस को डर हो कि हमारा जो डिफेंस है वो रिवील हो जाएगा और दूसरा विटनेस जो है वो उसको मैनिपुलेट कर लेगा, कवर कर लेगा, तो इन दैट इवेंचुअलिटी प्रोप्राइटरी डिमांड्स कि एविडेंस ऑफ सेट ऑफ विटनेसेस इज टू बी रिकॉर्डेड इन वन बुक. सर ये जी. यूसुफ रजा गिलानी वाले केस में और टिल द डिस्पोजल ऑफ कोर्ट ये पनिशमेंट उसे हुई और उसे डिसीट कर दिया गया. नहीं वो ऑफेंस ऐसा था ना, वो तो जो जुर्म था वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एलिगेट वो था ना, क्राइम था. तो इस वजह से बाज ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें एक दिन की भी सजा जो है दैट इज कंसिडर्ड एज सफाइस टू कन्विक्टेड कन्विक्ट हो जाता है. जी. सर मोस्टली हम देखते हैं कि बेल के मैटर्स के अंदर सर वुमेन और सर बच्चों को बेल ग्रांट कर दी जाती है. सर आपको नहीं लगता कि सर बहुत सारे ऐसे केसेस में सर एविडेंस के ऊपर सर वो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि सर वो एविडेंस डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं बहुत सारे सर्कमस्टांसेस. बेल इज समथिंग एल्स, एविडेंस इज समथिंग एल्स. सर ट्रायल में सर वो अफेक्ट नहीं करते. नहीं, अगर कोई जो है वो एविडेंस को टेम्पर करता है, इफेक्ट करता है, तो हिज बेल कैन बी कैंसिल. ये जरूरी तो नहीं है. सेक्शन 4 में इंक्वायरी जो है वो मेन मैजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है, तो ये जो FIA इंक्वायरी करती है और ये जो पुलिस SOPs बनाती है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस SOP बनाती है तो दैट इज इलीगल. ये कोर्ट्स इसको कंसिडर नहीं करती. जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो रूल्स हैं वो क्योंकि वो कॉग्निजेंस लेते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और अगर फेडरेशन से रिलेटेड है तो वो FIA है. अगर जो प्रोविंसेस हैं उसमें एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है तो उनके रूल्स में प्रोवाइडेड है कि फर्स्टली दे विल इंक्वायर एंड देन ड्यूरिंग इंक्वायरी इफ समथिंग कम्स ऑन सरफेस तो देन दे गो फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर. 190 देखिए 190 जो है इट परटेन्स टू टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस. जो सेक्शन 200 है वो है दैट इज फॉर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर द कोर्ट. जी बिल्कुल, वो FIA की ही जुरिस्डिक्शन है, पुलिस उसमें नहीं इंटरफेयर कर सकती. Sir, as per Cooperative Housing Societies Act 1925, Section 56 of 54A, it is the prerogative of the registrar of society. वो सारे ऑफेंसेस नहीं हैं.
देखिए जो सोसाइटी के इंटरनल अफेयर्स और वो हैं और उसमें अगर कोई मामला घपले होते हैं तो फिर रजिस्ट्रार है, और अगर कोई और ऑफेंस कमिट हुआ है करप्शन का या कोई इस किस्म का जिसमें पब्लिक एट लार्ज को चीट किया या कोई और फॉर्जरीज की हैं तो वो FIA का डोमेन है। तो उसमें भी डिस्टिंक्शन है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के जो ऑफेंसेस हैं वो रजिस्ट्रार ने देखने हैं। जो PPC के जो ऑफेंसेस हैं और करप्शन वाले जो हैं वो सेक्शन 5 ऑफ PCA वगैरह, तो वो जो है FIA ने देखना है। सर स्पेशल लॉ है 1925 कौन सा? 225 कोऑपरेटिव एक्ट स्पेशल लॉ, जी जी। तो FIA का लॉ इस पे कैसे प्रोवाइडेड? नहीं, उसमें FIA के शेड्यूल में प्रोवाइडेड है ये कि उसमें एक तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने अहदेदार हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इख्तियार हासिल है टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। नंबर 2, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो वायलेशंस हैं उसको रजिस्ट्रार देखेगा। उस एक्ट में जो PPC की सेक्शंस है या सेक्शन 5 ऑफ PCA है वो FIA देखेगा। सेक्शन 5 PCA जो है वो रजिस्ट्रार नहीं देख सकता। सर बट अगर एक दफ़ा वो इंक्वायरी करता है या कोई प्रोसीडिंग करता है FIR अपने उस पर, तो फिर FIA भी करती है, तो ये आर्टिकल 13 को जो पॉलिटिकल राइट का नहीं देखें, उसकी भी आर्टिकल 13 या जो सेक्शन 403 है उसको भी वो डिस्टिंक्ट अगर ऑफेंसेस हैं तो वो कोई बात नहीं है अगर वो डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं। और इवन जो रजिस्ट्रार है अगर वो भी इंक्वायरी करता है और आफ्टर इंक्वायरी ही कंक्लूड्स कि नहीं इसमें तो डोमेन FIA का बनता है, तो वो भी FIA को जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के में जो पीनल क्लॉज है उसकी वायलेशन है तो वो रजिस्ट्रार में नहीं। बतौर वकील क्या मशवरा देंगे कि अपने क्लाइंट को जब वो पुलिस स्टडी में हो पुलिस से बेल आउट करवाना चाहिए या कोर्ट? देखें ये आपके बस में तो नहीं, ये आप कोशिश को जो है वो वैसे बायर जो है वो एक एक्यूज को एक्सेस टू काउंसिल दी जाती है, हमारे यहाँ नहीं दी जाती। उसकी रीजन बहुत सारे रीजंस हैं। तो जो हमारे यहाँ जो लॉयर का रोल है स्टार्ट होता है वो कोर्ट से स्टार्ट होता है। उसको दूसरा थानों में जाना और वो अच्छा नहीं समझा जाता। Sir, in America there is the concept of Miranda rights. Do we have something like that here? देखिए हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो तमाम मेरिटा राइट्स और तमाम को देख के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वो तो एवोल्यूशन था राइट्स का मैग्ना कार्टा से लेके आगे जो जो वो हुई, तो फिर तमाम मुल्कों ने अपने अपने बाय एंड लार्ज तमाम चीज़ें सेम ही हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड सर मतलब वैसे ही प्रोसीजरली जो मतलब वो पकड़ते पुलिस को कि हमारा राइट टू काउंसिल एंड ऑल दैट, वैसे हमारी पुलिस तो ऐसे नहीं करते। नहीं, हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि जो 161 है वो जो है उसका वो आप ड्यूरिंग ट्रायल वो फॉर द पर्पस ऑफ कन्फ्रंटेशन यूज आप कर सकते हैं। दूसरा 161 जो है वो पुलिस के सामने जो कन्फेशन है दैट इज इनएडमिसिबल। तो बायर जो है कन्फेशन बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज वेरी मच एडमिसिबल। I see. So it's all in the process of court. Yeah, for the court. सर जो 173 रिपोर्ट आ जाती है तो किसी भी स्टेज पे एक प्राइवेट कंपनी जो है फाइल कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन सूनर इज बेटर। जितनी डिले होती है उसको कोर्ट फिर उसी शक की निकाल सकते हैं। सर पास केसेस में ऐसा होता है कि ब्लाइंड मर्डर होता है, किसी जो है ना पता नहीं चलता, बंदा कोरोना ले रहा था तो सुबह आए कोई नहीं गया, 1 दिनों बाद पता चलता है लाश मिल जाती है कहीं बना देती है, पता नहीं होता कि किसने किया कैसे हुआ। बाद में लेकिन ना वो कभी न कभी जो है ना वो अनर्थ हो ही जाता है कुछ, या किसी के मुँह से निकल जाता है ऐसा ऐसी उस सिलसिले में सालों गुजर जाए, देन उसको कैसे फिर दोबारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का आप बहुत सिंपल सी चीज को बहुत कॉम्प्लिकेट पता नहीं क्यों कर रहे हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस हो और एविडेंस सफिशिएंट हो तो उनको सजा होगी चाहे जितना मर्जी ऐसा गुजरे। अगर एविडेंस डेफिशिएंट है
वहाँ पे चेन ऑफ एविडेंस जरूरी है. रूल टू नेक इज अप्लाइड कि अनब्रेकेबल चेन होनी चाहिए लीडिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज. If that chain is available, that is confidence inspiring, then accused can be convicted. Any other question? Yeah, please. Can I explain what? That's very long. Okay. देखिए That are in trial like to need the fees and food. देखिए जो ब्लेसफेमी लॉज हैं वो इनफैक्ट हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे जो मुकद्दस हस्तियां हैं हम उनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बीइंग मुस्लिम होना भी चाहिए. तो जो हमारे सेंटिमेंट से खेलता है ये उसकी सजाएं हैं जो कि लॉ प्रोवाइड करता है. उसके लिए भी रूल और प्रोसीजर सेम है. अगर प्रोसिक्यूशन उसके लिए जो एविडेंस है वो सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड करती है तो मुलजिम को एज पर लॉ सजा होती है. अगर एविडेंस डेफिशिएंट है तो उसमें भी शक का शायबा, शक का जो फायदा है वो एक्यूज को. सर जी जिस तरह पिछले दिनों जियो के साथ हुआ, अब वो चैनल है और फिर उसके पीछे लोग हैं तो उन्होंने माफ़ी मांगी, कह रहे हैं माफ़ी दे दी, लेकिन वकला कह रहे हैं कि हम उनको तो माफ़ी दे देंगे लेकिन जो क्राइम हुआ है उसकी तो सज़ा मिलेगी. जी डेफिनेटली अगर किसी ने क्राइम किया है दैट इज टू बी सीन बाय द कोर्ट और फर्स्टली सीन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि क्या वाकई क्राइम हुआ है, एक्टेसरियस मेंसरिया मौजूद है तो फिर जो है वो सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं किया तो एक्विट होना चाहिए. सर उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट की सर बात कर रहे हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट ऑन ए सफरेशन तो सर वो तो पूरे का मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने देखी है. उसके ऊपर क्या मतलब उसके ऊपर तो वो सारा सब आपके सामने. देखें अगर वो किसी भी पीनल प्रोविजन को हिट करता है वो एक्ट और तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो कोई भी उसको एनीवन कैन पुट अ लॉ टू मोशन, कोई भी कर सकता है. लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा, एक ही जगह पे वो ऑफेंस उसकी एफआईआर होगी और आगे एज पर लॉ जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा. ये जो डिस्चार्ज है सेक्शन 60 और दूसरी साइड से हम 365 देते हैं तो क्या वो तो सेशन डिस्चार्ज कर सकते हैं? जी बिल्कुल. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले अगर कोर्ट ऑफ सेशन देखती है कि सफिशिएंट मटेरियल इज नॉट इन एग्जिस्टेंस टू फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज देन एक्यूज इज टू बी डिस्चार्ज. जी ब्लास्फेमी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि मोस्टली जो ब्लास्फेमी के जो केसेस या जो ड्रिलिंग ट्रायल चल रहे हैं उसमें हमने देखा है कि एक तो जो ब्लास्फेमिक कंटेंट है वो जिसके पास आ रहा है जो मतलब उसको रिसीव कर रहा है वही बंदा कन्विक्ट हो रहा है और उसी से रिलेटेड ट्रायल कर रहा है. अब वो जिसने सेंड किया है, जिसने भेजा है या जिसने वो बनाया है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा. नहीं, असल तो वही आदमी है रिस्पॉन्सिबल जिसने वो बनाया, जिसने भेजा. जिसने रिसीव किया उसको कोर्ट की तरफ से रिलीफ भी मिला है कि इसका कसूर नहीं है, इसने उसको बनाया नहीं है एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है. अब वो कोई आप पर्टिकुलर केस देखें, केस फाइल देखें, तो बंदा केस पढ़े तो फिर बंदा बता सकता है. ये तो एक जेनरिक किस्म की आप बात पूछें. तो देखना ये है कि क्या एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, एनी ऑफेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ऑफेंस, एंड वेदर सफिशिएंट एविडेंस इज अवेलेबल. और अगर प्रोसिक्यूशन सफिशिएंट एविडेंस ले आती है, कोई डेंट नहीं है, तो एक्यूज को सजा होती है. और इफ एविडेंस इज डेफिशिएंट देन एक्यूज अर्न्स एक्विटल. सर ये दुनिया में और हमारे पाकिस्तान में भी दो बड़े सेक्ट हैं मुसलमानों की, शिया सुन्नी. अब इसमें एक सेक्ट फर्ज करें दूसरे सेक्ट की बड़ी हस्तियों को जो मोहतरम है उन पर उनके मुताबिक वो मोहतरम नहीं है और उस पर बात करता है तो वो कहते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर बिलीफ. जो भी बात है जी, देखें किसी के सेंटीमेंट्स का जरूर ख्याल रखना चाहिए. तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे का या तमाम जितने भी फिरके हैं उनका एहतराम तो लाज़िम है एक दूसरे पे. तो मेरे ख्याल से तो जो लोग ऐसा करते हैं वो जानबूझ के वो शर फैला रहे हैं किसी की भी सेंटीमेंट्स को इन्फ्रिंज करके, चाहे वो जो भी हो. किसी का बिलीफ जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी और के बिलीफ का एहतराम ना करें. आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू.
कल से यकीन करो नहीं पीता है ये तो मुस्लिम स्टाइल है लेकिन ये तो हमारे साथ वाले बैठे हुए हैं। दिल्ली करता हूँ लिखने का ये मुसलमानी वाला ठीक है ना वो इस्लाम के पास